Hello dear students, welcome in a chemistry of lengthened element. I am Gangani sir. Now today we will discuss various oxidation states of lengthened element. Now lengthened element ki what are the different oxidation state? About this we will discuss in today lecture. So let's we start. Now whenever we are taking lengthened element, it is observed that all the lengthened element having a common oxidation state and it is plus 3. Now, inner layer of lengthened element. When we are taking this lengthened element, it has a general configuration xenon, 4Fn, 5D either 0 or 1, 6x2. Now, in between these two, there is a 5s2 and 5p2 orbital. This 5s2 and 5p2 orbital having a 8 electron. And inside of this, there is a 4f orbital. It has a 14 electron. But we have to say up to 14 electron. यानी 14 तक के इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकते हैं. Now, the plus 3 oxidation state of these three elements. Which are these three elements? Lanthanum, gadolinium and lutetium. It is due to, for lanthanum it has a completely vacant orbital. When we take lanthanum, it has a completely vacant orbital. When we take gadolinium, it has a half-filled orbitals. When we take gadolinium, it has a half-filled f orbital. And when we take lutetium, it has a completely filled 4f orbital. So these three elements, lanthanum, gadolinium and lutetiums having a empty d4f orbital or half filled of 4f orbital or a completely 4f filled 4f orbitals. So because of this, it is observed that they are giving us a plus 3 oxidation state. Similarly, when we take a cerium, then cerium with plus 3, it is also giving us a plus 4 oxidation state. Now, in electronic configuration of cerium, it has a 1 electron present, 2 electron present in a f orbital. So when it acquire plus 4 oxidation state, the 4f orbital become empty and therefore it get a electronic configuration like a noble gas element. Therefore cerium with plus 3, it is giving us one more oxidation state and it is a plus 4 oxidation state. Now similarly, terbium giving us plus 4 oxidation state, gadolinium having a plus 3 oxidation state because of half filled empty orbital. Now, so some extra element like a terbium giving us plus 4 oxidation state to make a half filled orbital. So here we have to discuss these two elements. First we are discussing about lanthanum. Lanthanum having a common oxidation state plus 3. अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई किस तरह से. तो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, 6x ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन और 5d ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन. व्हेन इट लूज इट एक्वायर a plus 3 oxidation state. Now in a case of cerium, it has a 2 electron in a f orbital and 2 electron in s orbital. So by losing 2 electron of f orbital, 2 electron of s orbital, it acquired a plus 4 oxidation state and therefore it has a empty 4f orbital. यानी उसकी 4f orbital है totally vacant है. Similarly, when we take gadolinium, it has a 64 atomic number. When we take gadolinium, it has atomic number 64. When we take a terbium, it has atomic number 65. So in order to acquire half-filled orbital, gadolinium electronic configuration, gadolinium will lose 3 electrons from which orbital? 2 from s orbital and 1 from d orbital. But in a case of terbium, it also lose 1 electron from a f orbital, 2 electron from s orbital and 1 from d orbital. So by losing totally 4 electron, it acquired a plus 4 oxidation state, and purpose of this half filled 4f orbital. So in short, lanthanide element giving us plus 3 oxidation state when orbital of totally empty, or 4f orbital is half filled, or 4f orbital is completely filled. And with this, some element like cerium, terbium
also giving us a +4 oxidation state to make it for f orbital empty or a half filled. So now lengthened element giving us a two type of oxidation state, +3 as well as +4. Now in a case of europium, when we talk about europium, then europium will lose only 2 electron instead of 3 electron. So when it lose only 2 electron of s orbital, then it has a half filled for f orbital. So to acquire electronic configuration like a gadolinium, europium losing only 2 electrons, so it has half filled orbital. Similarly, lutetium having a completely filled 4f orbital. Now to acquire same type of electronic configuration, ytterbium losing only 2 electron. So in a case of completely filled orbital or half filled orbital, lengthened element with +3 oxidation state, they are giving us a +2 oxidation state also. So lengthened element having a totally 3 type of oxidation state. It has a general oxidation state +3, and with this +3 it is giving us a +2 oxidation state, as well as it is giving us a +4 oxidation state. Now when f orbital is half filled, completely filled or completely vacant, in such a case it giving us either +2 oxidation state as well as +4. Now lanthanide can react with water and giving us corresponding lanthanide hydroxide, and hydrogen gas will be liberated. Then you know that very well, it is quite easy. Now when you take a water, it giving us two type of ion, H plus as well as OH minus. So now lanthanide, by losing 3 electron, it convert into lanthanum +3. So 2 lanthanide will lose a 6 electron. The 6 electron will be gained by 6H plus ion and converting in a 3 hydrogen gas, and lanthanide combined with hydroxide and giving us a lanthanide hydroxide. So in short, when lanthanide element is allowed to react with water, it giving us lanthanide hydroxide. Now further, so we have discussed that lanthanide element giving us a 2 additional oxidation state, +2 as well as +4. Now when we take a samarium and thulium, it has a +6 as well as +3 oxidation state. When we take a promethium and neodymium in +4 oxidation state, it has a f orbital have a 1 and 2 electron. So from a general electronic configuration, lanthanide element trying to get oxidation state near to half filled orbital, completely filled orbital or completely vacant orbital. So lanthanide element giving us a various oxidation state, it giving us +2 oxidation state as well as +4 oxidation. So here I have given you list. When we discuss about lanthanide element, it has a common general oxidation state is +3. All lanthanide element giving us a +3 oxidation state. Now with this +3, it is observed that samarium and europium giving us a +2 oxidation state, and purpose of this +2 oxidation state to acquire electronic configuration like a half filled f orbital. Similarly, ytterbium and thulium giving us a +2 oxidation state. Just we have discussed here, when ytterbium losing only 2 electron, it has a 4f orbital completely filled. Therefore, in such a case, it giving us +2 oxidation state. Now, when we take a terbium and dysprosiums losing one more electron, when it losing one more electron, it has a electronic configuration like a f orbitals. So when it lose 4 electron, 2 from s orbital and 2 from f orbital, then it has a electronic configuration like a half filled f orbital. So in case of terbium, it losing a 4 electron. So in short, lanthanide element giving us most common oxidation state +3. With +3, it giving us oxidation state +2, as well as it giving us a oxidation state +4. Now in +4 oxidation state, it acquire a empty f orbital.
Now you observe that cerium electronic configuration by losing 2 electron of s orbital and losing electron of f orbital too. It acquire +4 oxidation state, so f orbital is completely vacant. Similarly, all the element giving us this 3 type of oxidation state. Now we go further. So we have discussed and study that lanthanide element having a +3 oxidation state as well as +2 and +4 oxidation state. But this +2 and +4 oxidation state is less stable. Now it is a various use. When we take a cerium +4 oxidation state containing compound, then it is working as a strong oxidizing agent. You know very well, जो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अपने का रिडक्शन करता है. सो इट अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन. सो उसने इलेक्ट्रॉन लिया और +4 में से कन्वर्ट हो गया +3 में. अब जो एलिमेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीरियम है वो Fe+2 को कन्वर्ट कर देता है Fe+3 में. सो हियर cerium is working as a strong oxidizing agent. But when we take a samarium, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट samarium की लिखूंगा +2 और यहाँ पर होगी +3. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में से +3 में कन्वर्ट होती है, यानी उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. तो samarium is working as a reducing agent, यानी samarium +2 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तरीके से बिहेव करता है और अपने का ऑक्सीडेशन करता है. तो samarium का ऑक्सीडेशन होगा और वर्किंग एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. सो lanthanide एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as strong reducing agent in various oxidation state. So now we have discussed that various oxidation state of lanthanide element. This lanthanide element having a various oxidation state. On the basis of this rule, we have discussed that it has a half filled orbital or completely filled orbital or completely vacant orbital, then they're giving us a highest stable oxidation state. तो lanthanide में cerium की +4 oxidation state और lanthanum की +3 oxidation state highest stable है. इसी तरह से thorium की +4, europium की +2, gadolinium की +7 oxidation +3 oxidation state में highest stable है because f orbital is half filled orbital. Ytterbium और lutetium की +2 and +3 oxidation state highest stable है because it has a completely filled f orbital. So in short, we can assume that when spatial stability of lanthanide element is associated when it has a electronic configuration for f orbital is completely vacant or half filled or completely filled. So they have a maximum stable oxidation state. और दो फैक्टर दूसरे भी हैं साथ में जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है thermodynamic parameter and second is kinetic energy. So these two also affecting factors on stability of oxidation state. चलो आगे बढ़ते हैं. So now here I have given a stability order. ये आप देख सकते हो कि यूरोपियम की +2 oxidation state is more stable than ytterbium, then samarium, then thulium and neodymium. So lanthanide iodide are solid. Similarly lanthanum के +2 oxidation state है, उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर दी है and it has a metallic in nature. Now for +4 oxidation state stability order, यानी cerium +4 is more stable as compared to terbium and praseodymium +4. Neodymium and dysprosium +4 स्टेबल इक्वल है लेकिन कम है किससे, टर्बियम और प्रिजोडियम से. तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी दी है कि भाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यूरोपियम इज हाई स्टेबल, देन यटरबियम, देन समरियम, देन थुलियम एंड नियोडिमियम, वो दोनों की इक्वल है. उसका मेटालिक नेचर होगा. बट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सीरियम इज हाई स्टेबल, देन टर्बियम, देन प्रिजोडिमियम, वो दोनों की इक्वल है. और ये दोनों नियोडिमियम और डिस्प्रोशियम से हाई स्टेबल है. तो उसकी स्टेबिलिटी हम पोटेंशियल की हेल्प से भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पर है कि भाई एलिमेंट है
तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। अच्छा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। +3 ऑक्सीडेशन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। सो हियर आई हैव गिवन यू that +3 oxidation state of lanthanide is highest stable, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ लैंथेनाइड एलिमेंट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। वंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको दिमाग में बैठा देना है कि लैंथेनाइड एलिमेंट के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो कम होती है। So this is the most important thing which I have discussed with you. Now, यहाँ पर हमें लैंथेनाइड एलिमेंट की +3 ऑक्सीडेशन के साथ जो दूसरे स्टेबिलिटी फैक्टर है उसको डिस्कस किया है हमने, डिस्कस कर लिया कि सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसमें f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन सीरियम की +3 है तो f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसका क्या होगा कि +3 वाला इजीली रिड्यूस्ड और इलेक्ट्रॉन लूज करके इजीली कन्वर्ट होगा +4 में, और +4 वाला इजीली बाय गेनिंग ए 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इन ए +3। सिमिलरली प्रिजोडियम +4 आयन है तो उसके पास 4f1 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब यूरोपियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इटरबियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस एलिमेंट आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट पार्ट। सो हमने देखा कि भाई ये सभी एलिमेंट है, समेरियम, यूरोपियम और इटरबियम, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्वायर करते हैं। तो समेरियम है वो एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे। समेरियम +3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और समेरियम +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरोपियम +3 वाला एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूरोपियम +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूरोपियम इटरबियम है वो +3 वाला है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर दिस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कन्वर्टिंग इन अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर मैंने आपको उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया है कि thus value indicate that samarium, europium and ytterbium are strong reducing agent. Samarium, europium and ytterbium are strong reducing agent, but in which oxidation state? +2 oxidation state. और उसकी reducing strength है, उसका ऑर्डर ये है कि samarium +2 is more strong reducing agent as compared to ytterbium. वो किस तरह से डिटरमाइन हुआ? तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से हमने डिटरमाइन किया। समेरियम है वो इटरबियम से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, और इटरबियम यूरोपियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दिस वी हैव डिस्कस। नाउ lanthanide element in +2 oxidation state in presence of oxygen converting in its corresponding oxide or giving a reaction with a water. So now we go for next part. अब इस एलिमेंट के सीरियम, नियोडिमियम और केमिस्ट्री ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के, अब हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड डिस्कस करते हैं। तो सीरियम, नियोडिमियम और थुलियम है वो सॉलिड हैलाइड बनाते हैं, यानी वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैलाइड बनेंगे। दिस हैलाइड आर इमीडिएटली ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर, सो द डाइवेलेंट कंपाउंड ऑफ लैंथेनाइड are more stable. Those europium is more stable. So lanthanum के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है वो सॉल्यूशन में कम स्टेबल है। वंस अगेन लैंथेनम के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी वाटर में कम है। क्या होगा? तो लैंथेनम के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है वो मॉइस्चर या वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट करेंगे। सो हियर गिवन ए स्टेटमेंट
all the lanthanum plus 2 compound decomposed by water with evolution of hydrogen gas. अब प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड की बात करते हैं. तो व्हेन वी टेक a plus 4 oxidation state containing compound, तो सीरियम है वो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड देता है कि सीरियम का नाइट्रेट होगा, उसके साथ डबल सोल्ट बनेगा, एमोनियम का भी नाइट्रेट होगा. सीरियम का सल्फेट है तो उसका भी डबल सोल्ट साथ में होगा, एमोनियम सल्फेट. तो उस तरह के प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड सीरियम है वो डबल सोल्ट देते हैं. अब जो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में वो वर्क करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने आगे पढ़ा था. तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर सीरियम प्लस 3 वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. प्रिजोडीमियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर प्रिजोडीमियम प्लस 3 वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हम देख सकते हैं कि प्रिजोडीमियम इज मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू सीरियम. तो पोटेंशियल की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. सो यहाँ पर देखा कि दिस वैल्यू शोज दैट सीरियम प्लस 4 एंड प्रोमिथियम प्लस 4 आर वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब यहाँ पर हमें जो सीरियम का सल्फेट है वी आर यूजिंग इन अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. सो टेट्रावेलेंट आयन सीरियम इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशंस. व्हाइल ये चार सीरियम की जो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल है और सॉल्यूशन में भी स्टेबल है. लेकिन ये चार एलिमेंट प्रोमिथियम, नियोडिमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम वो सिर्फ सॉल्यूशन में ही स्टेबल है. उसकी सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लस 4 है वो स्टेबल है. तो ये सभी इंफॉर्मेशन है जस्ट आपको समझनी है और दिमाग में बिठा लेनी है. अब हम लैंथेनाइड के प्लस 3 प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड कौन कौन से हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो लैंथेनाइड जब हम लेते हैं तो लैंथेनाइड है वो डिफरेंट टाइप के एनायन से रिएक्ट करेंगे. जो लैंथेनाइड का प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट है वो रिएक्ट करेगा डिफरेंट एनायन के साथ. अब डिफरेंट एनायन के साथ रिएक्ट करके वो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा. सपोज लैंथेनाइड रिएक्टिंग विथ है हाइड्रोक्साइड तो लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड मिलेंगे. कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके लैंथेनाइड कार्बोनेट और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके लैंथेनाइड सल्फेट देते हैं. तो लैंथेनाइड है वो इन एनायन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट देते हैं. और उसको हम जब हीट करते हैं तो वो बेसिक सॉल्ट है उसका डिकम्पोजिशन होकर वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उसका मतलब वो कि लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट है वो हीट करके कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड में. दिस आर दी बेसिक इन नेचर. लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, लैंथेनाइड कार्बोनेट, लैंथेनाइड सल्फेट आर बेसिक सॉल्ट एंड दिस सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू ऑक्साइड. अब ये सॉल्ट की बात करते हैं कि लैंथेनाइड का जो प्लस 3 कैटायन है वो इस एनायन के साथ रिएक्ट करेगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, आयोडाइड और एसीटेट और बोरेट. और ये सभी कंपाउंड लैंथेनाइड के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट ये सभी कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होंगे. लेकिन इन एनायन के साथ यदि बनाया कौन सा तो क्या फ्लोराइड है लैंथेनाइड का, या हाइड्रोक्साइड है, या लैंथेनाइड का ऑक्साइड है, या लैंथेनाइड का ऑक्जेलेट है, आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर. तो इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि लैंथेनाइड है वो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. उसमें हम उसके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड कंपाउंड बनते हैं जिसकी हम सोल्यूबिलिटी और स्टेबिलिटी चेक करते हैं. तो लैंथेनाइड के हमने देखा कि हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट है उसको हम हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड में. लैंथेनाइड के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट और बोरेट आर सोल्यूबल इन वाटर. while लैंथेनाइड के फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और ऑक्जेलेट वो जनरली इनसोल्यूबल है वाटर में. तो हमने देख लिया कि भाई लैंथेनाइड का ऑक्साइड किस तरह से बनता है. तो यह 3 कंपाउंड है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है और नाइट्रेट है. उसको हम हीट करेंगे. तो यदि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड है तो वो वाटर रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस कंपाउंड आर बेसिक इन नेचर. लैंथेनाइड के ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है.
इनसोल्यूबल है वाटर में, हमने देखा कि लेंथेनेट का ऑक्साइड है वो वाटर में इनसोल्यूबल है। नाउ दिस कंपाउंड लेंथेनेट के ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट बना देते हैं। यदि लेंथेनेट का ऑक्साइड है तो उसका फॉर्मूला है Ln2O3। उसमें लेंथेनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ऑक्सीजन की +2 है, -2 है। तो लेंथेनेट ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके लेंथेनेट के कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेंथेनेट के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके लेंथेनेट के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लेंथेनेट ऑक्साइड कैन रिएक्ट वेरी इजीली। अब हम बात करते हैं लेंथेनेट के हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो लेंथेनेट के जो हाइड्रोक्साइड है वो जिलेटिनियस पीपीटी की तरह होते हैं। आप लेंथेनेट एलिमेंट की वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको जिलेटिनियस पीपीटी मिलेगा, या फिर उसके एमोनिया के सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करोगे तब भी आपको लेंथेनेट के हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। अब डाइल्यूट अल्कली में ये सब लेंथेनेट आयंस है उसका सॉल्यूशंस के फॉर्म में होगा। सो लेंथेनेट हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दे आर नॉट एम्फोटेरिक। दिस लेंथेनेट हाइड्रोक्साइड हैविंग a hexagonal structure। वो लेंथेनेट हाइड्रोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लेंथेनेट के ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड, वो बेसिक है। लेंथेनेट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। यानी लेंथेनेट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो हमें यह पता चल गया कि सीरियम का ऑक्साइड और सीरियम का हाइड्रोक्साइड है वो मोस्ट बेसिक है। यदि हमारे पास सीरियम एटॉम है तो सीरियम के ऑक्साइड और सीरियम के हाइड्रोक्साइड वो मोस्ट बेसिक होंगे, और ल्यूटेशियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो लिस्ट बेसिक होंगे। तो लेंथेनेट एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये इंफॉर्मेशन से आपको दिमाग में सेट करनी है, समझनी है। अब हम बात करते हैं लेंथेनेट के कार्बोनेट के बारे में। लेंथेनेट के एलिमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए, लेंथेनेट के कार्बोनेट बनेंगे। उसको वाटर में डालिए, उसके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। सो लेंथेनेट कंपाउंड किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं उसकी हम बात करते हैं कि they can be prepared by adding a carbonate solution in lanthanate salt solutions। यानी लेंथेनेट का हमारे पास कोई हेलाइड है, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, या फिर हमारे पास दूसरा कोई सॉल्यूशन है, तो उसकी रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे तो लेंथेनेट के कार्बोनेट बनेंगे। लेंथेनेट के कार्बोनेट है वाटर में इनसोल्यूबल है। अब उसकी एसिड के साथ लेंथेनेट के कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा और लेंथेनेट का सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेंथेनेट के कार्बोनेट है वो लेंथेनेट का हमारे पास हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जब आप पास करोगे तो उस कन्वर्ट हो जाएंगे लेंथेनेट के कार्बोनेट में। लेंथेनेट के दूसरे सॉल्ट है हाइड्रोक्साइड है, के अलावा सपोज क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो उसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के एक्वियस सॉल्यूशन से करते हैं तो लेंथेनेट के कार्बोनेट बनते हैं। तो इस तरह से हम लेंथेनेट के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेंथेनेट के कार्बोनेट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में आएगा लेंथेनेट के हैलाइड। तो किस तरह से लेंथेनेट के हैलाइड बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। भाई लेंथेनेट है तो उसमें एक फ्लोराइड है, फ्लोराइड किस तरह से बनते हैं तो लेंथेनेट का जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसमें हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो लेंथेनेट का फ्लोराइड बनेगा। अब लेंथेनेट के फ्लोराइड है आर स्पेरिंगली सोल्यूबल, द फ्लोराइड ऑफ हेवियर लेंथेनेट आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन ए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब लेंथेनेट के जो फ्लोराइड है, हेवियर फ्लोराइड है, आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो कॉम्प्लेक्स। वाइल क्लोराइड है वो इजिली आप लेंथेनेट के ऑक्साइड की रिएक्शन से बना सकते हो। यदि आपके पास फॉस्जीन यानी COCl2 एमोनियम क्लोराइड है तो उसकी रिएक्शन से आप बना सकते हो। सपोज लेंथेनेट है
उसके ऑक्साइड की रिएक्शन आप COCl2 से करते हो तो क्या होगा कि 3 2 जा 6 क्लोराइड रिएक्ट विद दिस लेंथेनाइड एंड गिविंग अस लेंथेनाइड क्लोराइड। इस सभी कंपाउंड में लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंथेनाइड की रिएक्शन यदि हम COCl2 यानी फोस्जीन से करते हैं तो उसके 6 क्लोरीन लेंथेनाइड के साथ अटैच हो जाएंगे और लेंथेनाइड क्लोराइड बनेगा और बाई प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यदि हम लेंथेनाइड के ऑक्साइड की रिएक्शन एमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं तो लेंथेनाइड का क्लोराइड बनेगा। ये सिंपल रिएक्शन है कि चलो इसमें NH4 प्लस होगा और इसमें Cl माइनस होगा तो ये लेंथेनम +3 है वो 6 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके लेंथेनाइड का क्लोराइड बनेगा। अब ये 6 NH4 प्लस में 6 H प्लस आयन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे 3 और बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल और 6 एमोनियम आयन है उसमें से 6 H प्लस निकल जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा NH3। तो सिंपल है, लेंथेनाइड ऑक्साइड की रिएक्शन एमोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें मिलेगा लेंथेनाइड क्लोराइड और एमोनिया गैस विल लिबरेट। So dear students, today we have discussed oxidation state of lanthanide element। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ दूसरे जो लेंथेनाइड के कंपाउंड बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया और उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से है वो हमने डिस्कस की। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर बुक एंड PDF मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाई है आपके लिए, आप मेरे साथ ज्वाइंट हो सकते हो उस पर और वीडियो लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे। आपकी SYBSC की स्टडी के लिए मेरी चैनल को ज्वाइंट कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, समझे और अपना केमिस्ट्री साउंड बनाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। सी यू इन